Okay. So see, when we take your DMIT test, okay, what we do is we give you the report which will show that on your 10 fingers, which intelligence is in which percentage. Okay, like here you can see right thumb, right index, right middle, right ring, right little, left little. So in your DMIT report, you will get to know the percentage of all your intelligences. So you will get to know that which percentage is low, which percentage is high, and you can change them. Okay, suppose if my logical intelligence is coming low, now there will be we will tell you the ways, or in the report you will read the ways to increase this. So it is not that if your fingerprint has some particular percentage of intelligence and you cannot change that. You can work on it and you can change whichever intelligence percentage is low. You can work and you can increase. Okay, now for example, आप जब छोटे थे, when you were young, you have this DMIT test done. Now if you have worked on that intelligence, then definitely your intelligence would have increased. So we also do a psychometric test where you will have the percentage of all these as per your present situation. Okay, so you can easily see the difference between your DMIT and your psychometric. So you will come to know that in my childhood I had these intelligences, and now because of the environment and situation they have changed. So you will get the difference, and this will help you to understand yourself in a better way, that whether you should still focus on that particular intelligence, or if it is already increased, you can work on any other intelligence. Okay, now DMIT is important and psychometric is also important, because psychometric will tell you the present situation. Why we need this? ऐसा क्यों है कि हमें DMIT चाहिए? अगर हमें साइकोमेट्रिक में हमें पता चल रहा है ना, कि हमारी आज की डेट में क्या इंटेलिजेंसेस हैं, अगर हमें पता चल रहा है, देन व्हाई वी नीड दिस? और जब हम ये कह रहे हैं कि ये सब चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, सिचुएशन की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों करना है? हम सिर्फ ये क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज देयर इज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड. इस आपके DMIT रिपोर्ट के अंदर जो परसेंटेज है उस वो चेंज हो सकता है. यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 77 नंबर है, वो नंबर में चेंज कर सकती हूँ. यहाँ पे मान लीजिए 9 है, वो नंबर में चेंज कर सकती हूँ. नंबर ऑफ रिजेस में आपका जो है, जो इंटेलिजेंस मेजर यहाँ पे हो रही है, वो बढ़ या घट सकती है साइकोमेट्रिक में, वो ज्यादा या कम हो सकती है आपकी साइकोमेट्रिक रिपोर्ट के अंदर. ठीक है, फिर ऐसा क्या है कि मुझे ये भी चाहिए, ये इसलिए चाहिए कि इसके ऊपर कुछ पैटर्न्स लगे होते हैं, वो चेंज नहीं होते. यानी कि बाय बर्थ आपको अगर कोई एक पैटर्न मिला है, तो वो आपकी साइकोमेट्रिक में भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन वो साइकोमेट्रिक में नहीं दिखता है. उसे देखने के लिए DMIT करना ही होता है. Your pattern cannot be seen in psychometric, but is only seen in DMIT, which cannot be changed anyhow. अगर आप किसी भी तरह से अपना पैटर्न बदलना चाहें, वो पैटर्न चेंज नहीं होता है. अगर आप जबरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज प्रेशर डाल के चेंज करेंगे, तो वो सिर्फ एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा, और आप खुश नहीं रहेंगे उसमें. You will not be happy because something which is forcefully done. Okay, so psychometric is required to know your present skills, and DMIT is required to know your patterns. So we are giving you both. Okay, now
क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। आज आप अगर अभी ये देख रहे हैं तो आप अपने फिंगर्स के पैटर्न्स यहाँ से मैच कीजिए, ठीक है। कैन यू ऑल सी? अभी ये आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। है ना? तो आप ये पैटर्न्स को मैच कर सकते हैं। आपके थंब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना राइट थंब जो है सब लोग देखेंगे, ठीक है। और राइट थंब पे आप टॉर्च डाल के, आपको अगर ऐसे नहीं दिख रहा है, आप कमरे का लाइट बंद करके टॉर्च डाल के अपने फिंगरप्रिंट्स को स्टडी कर सकते हैं। और आप इसमें से देख सकते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट पे कौन सा पैटर्न है, ठीक है। अगर आपने फिंगरप्रिंट का पैटर्न अपना देखा है तो प्लीज आप मुझे अपना स्क्रीन पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हैं। मोस्टली आपको क्या देखना है कि आपके फिंगरप्रिंट पे क्या कोई सर्कल्स बने हैं थंब पे, या इस तरह का कोई लूप बना है, ठीक है। कितने लोग हैं जिनका लूप दिख रहा है थंब पे, या कुछ लोग हो सकते हैं जिनका ऐसा आर्क दिख रहा होगा, यानी कि एक तरफ से शुरू होके दूसरी तरफ पे फिनिश हो रहा है ना। 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको सर्कल में दिखेगा, या तो आपको ये ऐसा लूप दिखेगा, या तो ये आपको ऐसा आर्क दिखेगा। लूप ऐसा भी हो सकता है ना? सर्कल, सर्कल इलोंगेटेड भी हो सकता है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपको अपने थंब पे क्या नजर आया। इफ पॉसिबल अगर आप अपना वीडियो टर्न ऑन करते हैं तो मेरे लिए आपको समझाना ज्यादा इजी हो जाएगा। आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। यस, जिसको अगर नहीं दिख पा रहा है अपने फिंगर पे, आप हल्का सा पाउडर लगा सकते हैं। यू कैन अप्लाई लिटिल पाउडर एंड यू कैन सी। ये देखिए, अगर आपको ऐसा सर्कल नजर आता है ना, तो इसको हम वर्ल बोलते हैं, वी कॉल इट वर्ल। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आपका W1 है, W2 है ना, किस तरह का। अगर आपको इस डबल लूप जैसा पैटर्न दिख रहा है, हर पैटर्न जो है ना, ये आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। इंक्लूडिंग वर्ल है तो, पीकॉक आई है तो, ओके। ये पैटर्न्स हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपका जो पैटर्न है वो बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। अभी ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है जो बहुत अच्छी है ना। हर पर्सनालिटी के प्लस माइनस होते हैं, प्रोस कॉन्स होते हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी पर्सनालिटी में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हमें ऐसा, हम वो नहीं कर सकते कि ये पर्सनालिटी, ये पैटर्न वाले लोग ही अच्छे होते हैं। हर हर पैटर्न का प्लस माइनस होता है ना। लेकिन एटलीस्ट हमें अपने बारे में पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारे
ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि हमें अपने बारे में बहुत हम अपने आप को समझते हैं, हम अपने बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टडी के बाद में डेफिनेटली आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है और आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। और जहां पर भी वीक एरियाज हैं उस पर आपके लिए अब वर्क करना इजी हो जाता है। आपने अपना पैटर्न देखा, किस तरह का पैटर्न दिख रहा है आपको? सर्कल दिख रहा है, लूप दिख रहा है या आर्क दिख रहा है? एनीवन? ये सारिका, हीना, अगर आप ये लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप में से किसी ने मुझे व्हाट्सएप तो किया है पर उनके हाथ में मेहंदी लगी है, फिर भी मैं देख पा रही हूँ कुछ हद तक। आपकी थंब पर डबल लूप लगा है। जो फिंगर आपने भेजा है उसमें, हाँ मैं आपको टैग करके बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर डबल लूप लगा है। तो यहाँ आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है ना, कि डबल लूप होने से क्या। और इस फिंगर में भी हमें डबल लूप नजर आ रहा है। Yes, you all can send me picture. आपकी जो थंब है ना, ये आपकी पर्सनालिटी शो करते हैं। मेजर पर्सनालिटी आपकी थंब से शो होती है कि आपका खुद के साथ कैसा कनेक्शन है, आपका दूसरे लोगों के साथ कैसा कनेक्शन है। आपका जो राइट थंब है वो आपका खुद के साथ कनेक्शन बताता है। तो डबल लूप की पर्सनालिटी में दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो इंडिविजुअली आप खुद से पूछ सकते हैं, है ना। मैंने वैसे अपने लास्ट सेशंस में आपको रिपोर्ट्स अपनी दिखाई थी कि अगर हम आपको साइकोमेट्रिक रिपोर्ट देते हैं या आपको डीएमआईटी रिपोर्ट देते हैं तो वो कितने पेजेस की क्या होगा। अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जैसे एक साइकोमेट्रिक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ ये साइकोमेट्रिक रिपोर्ट के अंदर आपकी सारी इंटेलिजेंसेस की परसेंटेज और रैंक आएगी और आपके बारे में ये सारी चीजें डिटेल्स आपकी यहाँ पर, आपका IQ, EQ, AQ, CQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उनके परसेंटेज, आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती है ना। सॉरी मैंने चैट मिस, हाँ मैंने किया है व्हाट्सएप, ओके। हाँ ही ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा पैटर्न तो आप सिर्फ पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे तब भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दोनों थंब का फिंगरप्रिंट अलग जरूरी नहीं है, बट हाँ मोस्टली अलग ही होता है। आपका अपने साथ कनेक्शन कैसा है जरूरी नहीं है सेम टू सेम कनेक्शन आपका लोगों के साथ मिलेगा। Ma'am, what are the charges? सिर्फ आज के लिए लोएस्ट चार्जेस हमने आज के लिए कंपनी ने ऑफर जो हमें दिया है, तो आपकी दोनों रिपोर्ट्स साइकोमेट्रिक और डीएमआईटी और आपका रिपोर्ट एनालिसिस काउंसलिंग सब कुछ मिला के इट इज ओनली 1000 रुपीज।
आप मार्केट में कहीं भी पता करेंगे, आपको डीएमआईटी, सिर्फ डीएमआईटी का 4000 से ऊपर ही रेट मिलेगा। और साइकोमेट्रिक के रेट्स अलग होते हैं, काउंसलिंग के रेट्स अलग होते हैं। ठीक है, ये हम वेबिनार जिस दिन रखते हैं उस दिन एक स्पेशल ऑफर रहता है, क्योंकि हमें मल्टीपल क्वेरीज उस दिन मिल जाती हैं, तो वो कंपनी की तरफ से बेनिफिट आपको आज के दिन मिल सकता है। आप और भी जो भी क्वेश्चन है आपके, आप पूछ सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, किसी भी तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। डू नॉट हेजिटेट, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप पुट अप कीजिए। मैम सिर्फ आपको अभी थंब का पिक्चर सेंड करना है? हाँ, आपको जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। हम्म। तो मैं आपको बता पाऊंगी कि आपका क्या पैटर्न है। अभी जो मैंने आपसे शेयर किए थे पैटर्न्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें से कौन सा पैटर्न आपके थंब पे या फिंगर पे है, उससे ये पता चलता है कि आप, आपकी नेचर के बारे में पता चलता है। ओके मैम। After done my payment, what can I do? Can you please tell me? हाँ, देखिए, जैसे आपका पेमेंट आता है, फिर आपको एक FP वर्ल्ड करके ऐप है जो एंड्रॉइड पे फ्री है, वो डाउनलोड करना होता है। उसके बाद में हम आपको ये समझाएंगे कि आपको कैसे अपने फिंगरप्रिंट्स हमें भेजने हैं उस ऐप के थ्रू। आज अगर आपने मुझे फिंगरप्रिंट भेजा है तो कल आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे और आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको दोनों चीजें कर, आपकी काउंसलिंग के टाइम पर हम आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर हम आपको सिर्फ यस और नो में आंसर्स देने होते हैं, अराउंड 90 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको हैंड टू हैंड हम बताएंगे कि आपका बाय बर्थ जो पोटेंशियल था वो आपने कितना यूज किया, क्या आपके इंटेलिजेंसेस सप्रेस हैं या इंक्रीज हो गए। और कई बार क्या होता है, हम फोर्सफुली अपने अपने आप को बदलना चाहते हैं, उस केस में हम, हमारे इंटेलिजेंसेस वेरी करते हैं, लेकिन हमारी जो सोल की नीड है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, और इसलिए हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो जब ये रिपोर्ट कंपेयर होती है तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आता है कि आप अपनी सोल को कैसे खुश रख सकते हो, जो आपकी नीड है, जो डीएमआईटी के अंदर आपकी टॉप इंटेलिजेंसेस हैं, अगर आपने वो एनर्जी रिलीज नहीं की है तो आपने फोर्सफुली अपने सोल को एक तरह से सप्रेस किया है। तो वो सोल की हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना चाहिए वो इजीली आपको खुद समझ आएगा। ओके, मेहंदी है ओके तो मैम। दिख तो रहा है चित्र, अभी जो मेरे को मेहंदी के जो आए हैं पिक्चर्स, मुझे उसमें पैटर्न नजर आ रहा है। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? मैम जैसे आपने बताया कि कोई भी वीक पॉइंट हो तो मैम उस पे कैसे वर्क करना है, तो मैम आप ही ये सब सजेस्ट करते हैं? हाँ हाँ, आपको रिपोर्ट में ये सब चीजें लिखी होती हैं। और हाँ, एक और चीज है, आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट हिंदी में भी बनवा सकते हैं, तो आप आराम से उसको पढ़ के बहुत डिटेल, ये नेटवर्क इशू की वजह से मैं आपको रिपोर्ट दिखा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो जो हमारी डीएमआईटी की रिपोर्ट होती है वो 48 पेजेस की रिपोर्ट होती है। मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाई है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। वो रिपोर्ट आप चाहें तो हिंदी में भी बन सकती है। ओके डीएमआईटी से मैम। हमें हमारा प्लस माइनस पता चलता है। हाँ, देखिए, वैसे तो हम मोस्टली ये बोलते हैं ना कि हमें तो अपने बारे में सब पता ही है ऑलरेडी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, हम कई बार क्या करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं कि वो अगर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप खुद को पुश करने लग जाते हो वैसा बनने के लिए। तो डीएमआईटी रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या आपको सच में पुश अपने आप को करना है या नहीं करना है, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, अगर हम किसी कंपटीशन में भी घुस रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि उस तरह का पैटर्न हमारे पास है
या नहीं है ना? कई बार पैटर्न लगा है लेकिन हमें नहीं पता और हम ऐसे यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इनबॉर्न पोटेंशियल और पैटर्न दोनों चीजें पता चलती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी कि ये रिपोर्ट करने से पहले भी मैं अपना अकेडमी रन करती थी और आज भी मैं अपना अकेडमी रन कर रही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से या लक से या कंसिस्टेंसी से या हार्डवर्क से ही मेरे जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। लेकिन अब मुझे ये पता है कि मेरे मेरे पास वो स्किल है, मेरे वो पैटर्न्स लगे हैं जो मुझे एक मल्टीटास्कर बनाते हैं। और इसलिए अब मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशंस उस डायरेक्शन में ज्यादा है जो मेरे पैटर्न्स लगे हैं। तो ये एक क्लैरिटी मुझे मिली कि हाँ, मेरे पैटर्न्स नॉर्मल लोगों के पैटर्न्स से कहाँ डिफर करते हैं और उसकी वजह से मेरे अचीवमेंट्स दूसरों से डिफर करते हैं। और वहीं पे कुछ जगह जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को पुश कर रही थी और रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि कौन से मेरे पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। तो हर पैटर्न की रेमेडीज भी हम बताते हैं। जैसे मेरा एक पैटर्न लगा है ओवर थिंकिंग का, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग हमेशा खराब हो, नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। अब आज जब मुझे पता चल गया कि मेरे पास में ये पैटर्न है ओवर थिंकिंग का, तो अब मुझे यही समझ आता है कि मुझे अपनी ओवर थिंकिंग को पॉजिटिवली कहाँ चैनलाइज करना है, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ, पैटर्न चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ तो अब मुझे उसे पॉजिटिवली कैसे अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना है, अब मेरे को ये डायरेक्शन पता है। वरना मैं ये परेशान हो रही थी कि मैं इतना ओवर थिंकिंग क्यों करती हूँ। और फिर हम ओवर थिंकिंग का एक ही सोल्यूशन सोचते हैं कि मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन ओवर थिंकिंग वाले लोगों के लिए तब तक रिजल्ट नहीं ला सकता जब तक कि उन्हें अपने बारे में क्लैरिटी नहीं हो। अगर मुझे ओवर थिंकिंग के लिए मुझे फोर्सफुली बिठा दिया जाए कि आप आंखें बंद करके सब कुछ सोचना बंद कर दो, क्या वो पॉसिबल है? इज नो इट? मैम, नहीं ना। नो लेकिन मैम। आज जब मुझे ये पता है, सब चीजें क्लियर हैं, तो मेरे थॉट्स अपने आप, तो वो मेडिटेशन भी मुझे तब फायदा कर रहा है जब मुझे अपने बारे में क्लैरिटी है। आज मैं मेडिटेशन से फायदा उठा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। गॉट इट? एनी अदर क्वेश्चन? मैम Sorry, ऑनलाइन ma'am, से। I have this. Okay. Okay. जी। Yeah, sorry, ma'am, I've just joined. I don't know what all you must have discussed by now. I just wanted to tell you that I've already got this DMIT done for myself. I think I told this to you earlier also. But हम्म। somehow, one of my friends had also got it done from you. So हम्म। she told me that what you got done for yourself, उसमें counseling और psychometric analysis नहीं था. So somehow I am following that test properly for myself and my daughter also. But there हम्म। are few things which I feel कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Maybe the counseling part was not done at that time. So आपने so कहाँ that से करवाया था? there is a हमारी यहाँ पे कामी ऑफिसर वाइफ ही है. So ओके। we were in Ahmednagar at that time. So नहीं, she देखिए डीएमआईटी का मैं वही बता रही हूँ। अगर आपने डीएमआईटी रिपोर्ट लिया तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं है जब तक कि कोई काउंसलर आपको आपकी रिपोर्ट नहीं समझाता है। दैट इज ऑफ नो यूज, है ना? बिकॉज correct. इंटरप्रिटेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है। आपको इंटरप्रेट करना नहीं आएगा, एक काउंसलर ही इंटरप्रेट कर सकता है, बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आज मैंने 100 रिपोर्ट स्टडी की है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको नहीं दे सकती, राइट? Right, right. तो डीएमआईटी विल नॉट, सिर्फ रिपोर्ट रीड करने से यू विल नॉट गेट द बेनिफिट, है ना? आपने अगर रिपोर्ट आपका ले लिया है और आप उसको सोचते हो कि मैं उसे पढ़ के समझ जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने आपको बताया, आपने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स, हाँ जी मैम. मिनट, है ना, ये जो पैटर्न्स है ये आप नहीं समझ पाएंगे।
है ना। अभी तो यहाँ पे तो फिर भी मैंने इस सेशन में ये पैटर्न्स दिखाए हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी बताई हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत शॉर्ट में होती हैं, है ना। यहाँ पे जो डेफिनेशन या जो पॉइंट्स जो हाइलाइटर्स हैं वो बहुत शॉर्ट में हैं, लेकिन एक काउंसलर जिसने इतने सारे रिपोर्ट्स किए हैं वही क्लैरिटी से आपको समझा सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद सेशन इसलिए भी ज्वाइन किया कि आप भी करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक बार इनिशियली जुड़ना रहेगा, है ना। आप जब रिपोर्ट्स मेरे से स्टडी करेंगे धीरे धीरे आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर करियर इन काउंसलिंग। ये जो DMIT और साइकोमेट्रिक काउंसलिंग है ये सिर्फ करियर में हेल्प नहीं करती है, ये रिलेशनशिप्स में भी हेल्प करती है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको कहीं अगर लगे कि कहीं पे कोई पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसका खुद को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बच्चों को लेकर कंफ्यूजन है, फैमिली में कंफ्यूजन है या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, DMIT और काउंसलिंग से आई हैव गिवन, आई एम प्राउड टू से कि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए कि समटाइम्स इवन सुसाइड जैसी सिचुएशंस भी जो है वो अवॉइड हो गई। सो इफ यू नो एनीवन प्लीज रेफर। Thank you, ma'am. एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू नो? पता नहीं आज मेरे लैपटॉप में कैमरा में कुछ इशू है, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो भी आपको कंफ्यूजन है डेफिनेटली आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। द बेस्ट पार्ट ये है कि आफ्टर डूइंग दिस इवन आई कैन really feel कि every single person on this earth has a unique personality जो और किसी के पास में नहीं है। only thing is आप उसका बेस्ट यूज नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है इसका मतलब आप उसका प्रॉपर यूज नहीं ले पा रहे हैं। मैम एक चीज और बताओ मैम, जैसे माय डॉटर, आई गॉट her DMIT डन व्हेन शी वाज 3, so 3 मैम बच्चों की फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं? यस, बाय बर्थ बच्चे फिंगरप्रिंट्स लेकर आते हैं, फिर भी हम 1 ईयर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो स्किन जो बहुत सॉफ्ट रहती है तो 1 ईयर से इजीली हम चेक कर पाते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू मैम। एनीवन एल्स एनीथिंग? सो बेसिकली मैंने ये वेबिनार ये आपको समझाने के लिए लिया है कि DMIT के अंदर आपकी जो इंटेलिजेंसेस हैं वो परसेंटेज आपके हाथ में है। आप उन इंटेलिजेंसेस पे अगर काम करेंगे, लॉजिकल अगर आपका कम आता है, आप अगर लॉजिकल पे काम करना शुरू करेंगे आप उसे बढ़ा सकते हो, आप अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो और वो आपको साइकोमेट्रिक में रिजल्ट में दिखेगा। अगर आज मैं बड़े बड़े लोगों का जब DMIT और साइकोमेट्रिक करती हूँ तो मोस्टली वेरिएशंस दिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बॉर्न हुए उसके बाद में ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी हमने किया तो हमारी इंटेलिजेंसेस उससे वैरी तो होंगी। लेकिन DMIT का जो पैटर्न है उस पैटर्न से हमें समझ में आता है कि हमारा नेचर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और उसको जब हम पैटर्न समझ लेते हैं हमारा ये पैटर्न है तब हमारे लिए अपने ऊपर काम करना इजी हो जाता है। एनीवन एल्स एनीथिंग? फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होगी। आज जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो 10 इयर्स पहले भी वही था, 10 इयर्स बाद में भी वही रहेगा। हाँ, विद एज मैंने ये ऑब्जर्व करा क्योंकि मैंने ओल्ड एज पीपल का भी DMIT किया, वहां पे फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो थोड़े इतने क्लियर नहीं आते हैं। तो 60 प्लस 65 प्लस अगर आप देखेंगे तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स है वो थोड़े अनक्लियर रहेंगे, बट अदरवाइज फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so have a nice day everyone, bye bye. I hope your queries are answered.
and your doubts are clear. मैम 1 सेकेंड मैम, एक्सक्यूज मी Yes. मैम, हम जैसे ऑनलाइन पिक्चर सेंड करेंगे तो मैम ये हमें 100% रिजल्ट देगा, मतलब मैम ऑनलाइन पिक्चर्स और फिर हाँ, क्योंकि ये FP वर्ल्ड आप एक ऐप है जो आप एंड्रॉइड पे डाउनलोड करेंगे, तो उसमें क्लियर पिक्चर्स आते हैं, है ना, और ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली 3 डेज के बाद हमारे डैशबोर्ड से चले जाते हैं. ओके, जो Okay, नॉर्मल आप ma'am. अपने फोन से जो अभी फोटो क्लिक करके मुझे हम्म. दोगे वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो आप FP वर्ल्ड में डिवाइस कैमरे से जाके जो पिक्चर लेते हो उस ऐप से, वो बहुत क्लियर होते हैं. यस मैम, मैम अभी क्लिक करी थी, वो क्लियर नहीं हो रहे मैम नहीं नहीं पिक्चर्स नहीं नहीं, नॉर्मल अगर आप कैमरा से हम्म. करोगे तो वो क्लियर नहीं है. आपको डिफरेंस नजर आएगा जब आप ऐप से जब लेते हैं तो क्लैरिटी आती है. उसमें एक एक रिज बहुत क्लियरली दिखती है, वो ऐप इसी के लिए बना हुआ है. मैम जैसे हम आज पेमेंट करेंगे तो काउंसलिंग भी इसी वीक ही हो जाएगी ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आज आप पेमेंट करके आज फिंगरप्रिंट्स देंगे तो कल मॉर्निंग आफ्टरनून तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर हम इवनिंग में काउंसलिंग ले सकते हैं. बट अगर आज मुझे ज्यादा क्वेरीज आती हैं तो आपको 2-3 डेज में आपका सभी का काउंसलिंग हो जाएगा. मैम 1:1 रहता है और मैम ग्रुप 1:1 ओके. and entirely confidential. Okay. थैंक यू मैम. So only for today the fees is 1,000, which includes DMIT, fingerprint analysis, counseling and your psychometric, all 4. हाँ, छोटे बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते यस नो में, ठीक है, और उनके लिए हमें वैसे भी साइकोमेट्रिक की जरूरत नहीं है. उन्हें तो वो हमारे लिए अभी कोरा कागज है. हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, भगवान ने उन्हें ये इंटेलिजेंसेस दी है और मुझे उनको कैसे और इम्प्रूव करना है. ओके, बाय एवरीवन. बाय, थैंक यू मैम.